good afternoon to each and everyone. Today, I, the STNC of Mother Teresa Typecraft English School, welcomes you all to the next session of today's, that is setting outcomes in teaching and learning. I welcome once again our principal ma'am, our manager sir, the respected senior staff, the rest of the teachers, and the other members of our school. So, setting outcomes in teaching and learning. That means most of the people are not able to recognize what is the outcome of that learning or why they are studying. So, to make us aware how we can set outcomes in teaching and learning, we are having our TGT Hindi teacher, that is Mr. Sudhir Kumar Singh with us. So, I welcome him with a very round hand of applause. I, TGT teacher, first of all, I welcome all of you to present here. Today, my topic is setting outcomes in teaching learning. Teaching learning is a process where a student teaches and teacher teaches and a student learns. So, in this topic, how make teaching effective, how make learning effective, I am going to express some views on this topic. This system is based on triangle. Triangle has three sides. Without three sides, we cannot make a triangle. On the same way, in teaching learning process, three sides necessary. One side, parents, second side, students, and third side, teacher and management. Sides measurement should be accurate. Accurate sides make the triangles. On this way, parents, students, teachers and management have some ability, some have quality, so that triangle would be made. Otherwise, teaching and learning process never success. If you are given one side 2 cm, second side 3 cm, and third side 7 cm, and said you make it triangle, this is not possible. Sides are not appropriate. Triangle cannot be made because the length of side is not accurate, not any ability, meaningless. On the same way, to make teaching learning effective, the role of parents, the role of guardians, the role of students, and role of management is very essential. Now, I am going to discuss one by one the role of teachers. Before this, going to class, any teacher, before going to class, preparation must be necessary. Preparation must be necessary. One disciple went to a guru and said that I want to make a skill from you. वो आदमी है, वो जो छात्र है, तलवार चलाने की कला
सीखना चाहता था, हाउ टू ऑपरेट सोर्स इन द बैटल फील्ड। He went to a guru. गुरु एक्सेप्ट him. वहीं पर लगा। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, तीसरा महीना बीत गया, several months passed away. But the giving us skills not given by Guru. Why? गुरु कभी उस शिष्य को कहते थे, जाओ मेरे लिए गार्डन से फूल तोड़ कर लेके आ जाओ, मैं पूजा करूंगा। कभी बोलते थे, मेरे लिए भोजन बनाओ। कभी बोलते थे, उधार से देश के राजा छोड़ो। आई इसी तरह से डोमेस्टिक वर्क में प्रतिदिन उस शिष्य को लगाया जाता है। जिस काम के लिए वो शिष्य गया था, वो काम उसको हो गया। काफी निराश हो रहा था क्योंकि इस काम से आए थे और वहां फंस गए। अंत में अब हम क्या करते हैं, उसकी एक्टिविटी को करने के बाद एक बहुत बड़ा पॉइंटेड स्टिक लाते हैं। पॉइंटेड स्टिक देन द स्टूडेंट वाज टू गिव कीबोर्ड from backside and push them with pointed stick and hitting them. उसको पुश करते थे, गिराते थे, ठीक है। वो बच्चा जो है इधर उधर दिखता है, कौन ऐसा को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, तो पता नहीं। यही क्रम बहुतों दिन तक चलता रहा। एक दिन शिष्य जो उस आदमी को पकड़ लेता है, देख लेता है, तो उसके लिए कर रहा। He pick up a large stone and throw away. गुरु के पास एक ढाल था और ढाल रखे हुए थे, उस स्टोन को ढाल से रोके। जो स्टूडेंट जानता है, जाना कंफर्म हो गया, सारा एक्टिविटी हमारे गुरुदेव भी कर रहे थे। उस दिन गुरुदेव उसको बोलते हैं कि अब तुम्हारी पढ़ाई शुरू होगी। इसके पहले तक तुम तैयार नहीं था पढ़ने के। इसके पहले तक जो तलवार की कला तुम हमारे से सीखने के लिए आया है, तलवार चलाने लायक उस कला सीखने लायक नहीं था। तुम्हारे पास उस तरह की प्रतिभा नहीं थी, उस तरह का टैलेंट नहीं था, उस तरह का एक्टिविटी। अब तुम योग्य बन गए हो कि तुमने प्रहार उस पर कर दिया। हमारे जगह कोई दूसरा भी होता तो तुम उस पर प्रहार करता, मतलब तुम्हारी एबिलिटी अब जारी है, अब तुम तलवार सीख। तो टीचिंग शुरू करने के पहले प्रिपरेशन होती है। जब स्टूडेंट प्रिपेयर हो जाएगा कि हमको ये काम लेना है, सीखना है, तो टीचर का काम आसान है। टीचर का काम बिल्कुल ही हो जाएगा। इसलिए प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स वेरी नेसेसरी टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम सक्सेसफुल। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस four body: the role of teacher, the role of student, the role of parents, and the role of management. Including four bodies, ये चारों बॉडी मिलकर इस टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम को सक्सेस करते हैं। यदि इसमें से कोई एक बॉडी भी बीमार पड़ गया तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जहां का कहां रहता है। टोकरी में जब ये काम सर जाता है तो सारा टोकरी को गंदा करता है। यही प्रोसेस टीचिंग लर्निंग में है। ये चारों जो बॉडी है, they play a vital role in this process. चारों को अपनी अपनी भूमिका निभानी है। कोई एक असफल होगा, आपका मिशन अधूरा रहेगा। Now I am going to discuss the role of teacher.
teacher play very vital role in this process. He is the backbone. He is the backbone of this process. He possesses some quality also, simple living and high thinking. If this quality teacher possesses, that is known as ideal teachers. This is a main quality, simple living and high thinking. उनकी सोच हाई होती है। इस तरह का टीचर लाइफ को महत्व देता है, वो लाइफ स्टाइल से नहीं जाता है। आज की जिंदगी लाइफ स्टाइल की है। लोग सिनेमा देखने जाते हैं, वहां कपड़े का स्टाइल देख लेते हैं। ऐसा कपड़ा लोग पहनकर आता है कि कपड़ा पहने हुए है फिर भी पूरा तन दिखाई दे रहा है। दिस इज लाइफ स्टाइल। तो जो आइडियल टीचर होते हैं वो लाइफ स्टाइल में नहीं जाते हैं। लाइफ स्टाइल समय की बर्बादी है, पैसे का दुरुपयोग है, उससे जीवन में कुछ भी विकास होने वाला नहीं है। आपकी यात्रा पीछे क्यों जा रही है? आप विकास नहीं कर रहे। तो जो अच्छे टीचर होते हैं, आइडियल टीचर होते हैं, वो लाइफ स्टाइल को पसंद नहीं करते, वो लाइफ। अब एक टीचर को जो नीड है, जो चीज चाहिए वो तो चाहिए। वो वांट के चक्कर में भटकते नहीं हैं। There are many wants. Every wants cannot fulfill in this life. जो वांट के चक्कर में रहते भी हैं तो बहुत सारी इच्छाएं उनकी अधूरी रह जाती है और यहाँ से उनका टिकट कट जाता है, पूरा नहीं कर पाते हैं। वो अनलिमिटेड है, अनंत है। इसलिए जो आइडियल टीचर होते हैं उनके पास इस तरह का मेरिट रहना बहुत जरूरी है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जब वो खुद इस तरह के रहेंगे, बच्चों को ऐसा जो चीज आपके पास नहीं है आप दूसरे को कहां से दीजिए? जो चीज मेरे पास है वो चीज हम दूसरा को दे सकते हैं, लेकिन जो चीज मेरे पास है ही नहीं हम दूसरे को कहां से? लेकिन आज वही प्रॉमिस हो रहा है। लोग कहते फिरते घूम रहे हैं कि मैं दे रहा हूं, मैं दूंगा। अरे आपके पास तो है ही नहीं, तब कहां से? तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस प्रोसेस। नेक्स्ट, preparation of topic. Each and every teacher, it is the main duty of the teachers before taking the class, make preparation. If teacher not prepared and enter into class, his teaching is not any case. Any students ask you some questions related to the topic, you are not prepared. You are not prepared. You are unable to answer of the questions. How to make the teaching learning effective? So it is necessary to prepare the topic before entering the class. जो टीचर ऐसा करते हैं, बच्चों को संतुष्ट कर निकलते हैं,
बच्चा उनको आदर करता है, आदर के भाव से मिलता है। इतना नटखट बच्चा क्लास में रहेगा। अब जो टीचर स्टूडेंट्स की हर इच्छा को फुलफिल करने की ताकत रखता है वो टीचर इज्जत के योग्य होता है। बदमाश से बदमाश बच्चा भी उस टीचर को आदर करता है। तो इस तरह का प्रिपरेशन इस स्कीम को सफल बनाने के लिए हर टीचर को करना है। नेक्स्ट, यूजिंग मेथड ऑफ टीचिंग। Using method of teaching. There are so many methods that introduced in the classroom by the teachers. Introductory method, explanatory method, psychological method, audio-visual method, logical method, experimental method, interrogative method, motivational method, and self-healing method. और बहुत सारे मेथड हैं जो हमें याद नहीं आया होगा, हम नहीं लिख पाए हैं, लेकिन इतने सारे मेथड हमारे दिमाग में है। ये सब मेथड एक टीचर के द्वारा क्लास में यूज किया जाना चाहिए, तब आप लर्निंग टीचिंग आउटकम को सक्सेस बना सकते। तो सेल्फ फीलिंग मेथड क्या है? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। सेल्फ फीलिंग मेथड। एक माँ है, खाना बना रही। One mother while cooking the food is a small child playing there. माँ अपने बच्चे को कहती है, बेटा इस तवा को मत छूना, इस बर्तन को मत छूना, don't touch this pot because it was too hot. If you touch it, your hand will burn. तुम्हारा हाथ जल जाएगा, मत छूना। बच्चा तो ना समझ है, उसको अभी भाषा का ज्ञान नहीं है, उसे अभी भी पता नहीं है कि गर्म क्या होता है, आग क्या होता है, ठंडा क्या होता है, उसको कुछ पता नहीं। माँ ऐसा कहकर तो दूसरे काम में इधर उधर लग जाती है। बच्चा लुढ़कता हुआ जाता है, बर्तन को टच कर, हाथ जलता है, बच्चा को कष्ट हुआ, अच्छा नहीं लगा, हाथ जल, दुख हुआ। बच्चा सीख गया कि ये गर्म है, इसको नहीं छूना है। लर्निंग उसका वहां पर हो गया। जब एक नासमझ बच्चा को इस विधि के द्वारा लर्निंग दिया जा सकता है, ये मेथड बहुत अपने आप में करते हैं। सेल्फ हीलिंग, यहां पर गुरु की कोई जरूरत नहीं, बच्चा स्वयं सीखेगा। तो यदि इस तरह का सिचुएशन खास करके छोटे बच्चों के लिए, यदि सेल्फ हीलिंग से बच्चों को शिक्षित करने का, तो इस प्रकार से जो एजुकेशन बच्चों द्वारा गेन होगा बहुत लॉन्ग लाइफ मिलेगा, वो कभी भुलाएगा नहीं, उसको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। उसके मस्तिष्क में ऐसा एक छाप छोड़ दिया है, नॉलेज यहाँ पर जाकर ऐसा बैठ गया है, दिल के कोना में जाकर स्थान बना लिया है, वो कभी निकलेगा नहीं, एकदम परमानेंट एजुकेशन हो गया, कभी भुलाएगा नहीं। तो इस प्रकार का जो एजुकेशन है
इस प्रकार का जो एजुकेशन है, सेल्फ फीलिंग मेथड इज द बेस्ट मेथड टू प्रोवाइड टू मेक लर्निंग टीचिंग फ्रूटफुल। नेक्स्ट, introductory method. First of all, teacher enter the class. Makes introduction. Topic that is taught by you. Firstly, you give instruction. Instructions, a briefly description. जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं, संक्षेप में 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, उसके बारे में हम लोग परिचय देते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में अकॉर्डिंग टू टॉपिक आप उसकी उत्पत्ति से शुरू कर सकते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, कब से ये चीज आरंभ हुआ, इस तरह से थोड़े शब्दों में मेन कंसेप्ट बच्चों के दिल में डाला है। दिस इज इंट्रोडक्शन। ऐसा हम लोग करते भी हैं। एक्सप्लेनेटरी मेथड, इंट्रोडक्शन देने के बाद हम लोग एक्सप्लेनेटरी मेथड में प्रवेश कर जाते हैं। एक्सप्लेनेटरी मेथड मीन्स टू एक्सप्लेन द टॉपिक इन डिटेल्स। उसको डिटेल में हम लोग बच्चा को बताते हैं। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल मेथड। साइकोलॉजिकल मेथड इज ऑल्सो ए वेरी इफेक्टिव मेथड। साइकोलॉजी के टीचर्स who know साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जानने वाला टीचर बच्चा के मन मस्तिष्क की बात को जान जाता है, इसके पास हम क्या चल रहा है। वो सिर्फ बाहरी एक्टिविटी को नहीं जानेगा, उसके अंदर जो एक्टिविटी चल रहा है उसको भी वो जान जाता है। साइकोलॉजी में इतनी पावर होती है। ये बाहरी विज्ञान नहीं है, ये अंदर का विज्ञान, वो जिसको जाना जा सकता है। एक इंसिडेंट जो हमारे साइकोलॉजी टीचर्स जिनसे हम पढ़ते थे, उन्होंने बताया है, जो हमको अभी तक याद है। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अपने बच्चे को लेकर मार्केटिंग करने के लिए रिक्शा पर बैठकर, प्रोफेसर थे, आर्थिक संपन्नता, गरीबी दिखा रही, लेकिन सिंपल लिविंग अवस्था। रिक्शा पर बैठकर शाम का वक्त था, सब्जी गिनने के लिए जा रहे थे। तो उस समय की बात है जिस समय टीवी का आविष्कार हो चुका था। बहुत सारे सुखी संपन्न लोगों के घर में टीवी लग गई थी, लेकिन इनके यहाँ टीवी नहीं था। अब ये नहीं पीने, 2 बच्चे थे। अब बच्चा जो रिक्शा पर बैठा हुआ है, बच्चा का ध्यान जितने मकान पर एंटीना दिखाई पड़ रहा है वो एंटीना दिख रहा है। अब माँ को बोलता क्या है, माँ देखो उस घर में भी टीवी है, एंटीना लगा। थोड़ा सा रिक्शा आगे बढ़ा, फिर दूसरा एंटीना दिखाई पड़ गया। बच्चा बोल रहा है कि माँ देखो इस घर में भी टीवी लगा हुआ। तो इसी तरह से जैसे जैसे रिक्शा आगे बढ़ते जा रहा है, एंटीना बच्चा को दिखता जाता है और माँ को बताता जाता है। अभी सब्जी मंडी में रिक्शा पहुंची नहीं है, अभी रास्ते में है। अंत में वो बच्चा क्या बोल देता है कि लगता है
कि मेरी माँ बहुत गरीब है, इसलिए एक टीवी नहीं देखती है। वो खुद साइकोलॉजी की टीचर थी, प्रोफेसर थी, उसको यहाँ पर लग गया मेरा बच्चा का विकास बहुत द्रुत हो जाएगा, इसके मना मस्तिष्क में गरीबी वाला आ गया। ये हमारे माता पिता गरीब हैं कि टीवी नहीं मिल सकती। This child is suffering from depression. बच्चा के अंदर डिप्रेशन का भाव जागा। जिस बच्चा के अंदर डिप्रेशन का भाव जागेगा वो बच्चा का विकास रुक जाएगा। अब रिक्शा सब्जी मंडी में नहीं गया, तुरंत वहां से गायब हो गया कि क्या हो गया, पैसा लिया गया, टीवी के दुकान में जाया गया और उस डिप्रेशन को बच्चा से कोसों दूर करने के लिए हर घर में एक टीवी होता है, उसी दिन 2 टीवी मिला है। जितना तुमने एक टीना देखा एक मिला। तुम्हारी माँ तुम्हारे पेरेंट्स इतने अमीर हैं 2 टीवी मिले। तो इस तरह से डिप्रेशन से बच्चों को मुक्ति दिया गया। तो साइकोलॉजी जो पेरेंट जानते हैं, जो टीचर जानते हैं, या कोई भी आदमी साइकोलॉजी को जानता है, तो उस बच्चों का पालन पोषण उसी ढंग से करता है और बच्चों का विकास सही ढंग से होता है। तो इस तरह से ये तो कहानी हो गई। तो हम लोग भी बच्चों से जुड़े हुए हैं, बच्चों की नीड्स को हम लोग जानते हैं। तो जहां तक हो सके क्लासरूम में साइकोलॉजिकल मेथड यूज किया जाए ताकि टीचिंग लर्निंग आउटकम फ्रूटफुल। यही आपका साइकोलॉजिकल मेथड है। नेक्स्ट एडियो-विजुअल मेथड। अगला जो मेथड है एडियो-विजुअल मेथड के रूप में हमने उसको रखा है। एडियो मीन्स हियरिंग और विजुअल मीन्स लुकिंग, सुनकर और देखकर। यदि बच्चा को पढ़ाया जाए, सुनाया भी जाए और दिखाया भी जाए तो लर्निंग टीचिंग इफेक्टिव हो जाता है। इसके लिए टीचर को एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा। विजुअल एड्स घर पर बनाने होंगे, जहां भी आप बनाए, जहां आपको मौका मिले विजुअल एड्स आपको घर पर तैयार करना होगा। जो आप टॉपिक कल पढ़ाने जा रहे हैं और विजुअल एड्स बच्चों को दिखाकर, यदि आप कोई टीचर टीचिंग करता है तो उनका टीचिंग इफेक्टिव हो जाएगा। और विजुअल एड से बच्चे लोग आकर्षित ज्यादा होते हैं, उनमें आकर्षण का भाव पैदा होगा और उसी के माध्यम से आपका टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम फ्रूटफुल। लॉजिकल मेथड। नेक्स्ट लॉजिकल मेथड है, यू कैन यूज द लॉजिक। तर्क वितर्क आप बच्चों से कर सकते हैं अपने टॉपिक को समझाने के लिए। यदि कुछ लॉजिकल बात भी बोलना पड़े, लॉजिक भी यूज करना पड़े, तो आप क्लासरूम में लॉजिक का प्रयोग कर सकते हैं। लॉजिकल क्वेश्चंस, लॉजिकल तर्क आप बच्चों से कर सकते हैं। आप अपना टीचिंग को इफेक्टिव कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को बताना। पहले थ्योरी आप बता दीजिए, उसके बाद इसका एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्सपेरिमेंटल ज्ञान बच्चों को हो जाएगा। इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को शिक्षा देना एक्सपेरिमेंटल मेथड हो जाता है। साइंस में तो एक्सपेरिमेंट करता ही रहता है।
उसके बाद है इंट्रोगेटिव मेथड। इंट्रोगेटिव मेथड भी हम लोग क्लास में यूज करते ही हैं। इंट्रोडक्शन देते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, ये सब मेथड यूज करने के बाद कुछ असेसमेंट के तौर पर हम लोग कुछ क्वेश्चन बच्चों को देते हैं, पूछते हैं। दिस इज इंट्रोगेटिव मेथड। मोटिवेशनल मेथड। मोटिवेशनल मेथड में होता क्या है, मोटिवेशनल के द्वारा जो लर्निंग है बहुत अच्छा हो जाता है। जिस बच्चा को पढ़ने की इच्छा अभी नहीं है, आप पढ़ाने क्लास में चले गए, बच्चा को पढ़ने की इच्छा नहीं है और आप पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, आपका टीचिंग इफेक्टिव नहीं है। इसलिए क्लास में जाने के बाद पहले आप क्लास का मूल्यांकन कर लें कि बच्चा की क्या भावना है, क्या एक्टिविटी चल रहा है। यदि बच्चा पढ़ने के मूड में नहीं है और आप पढ़ाने गए हैं, बच्चा पढ़ने के मूड में नहीं है, वहां पर मोटिवेशनल मेथड यूज किया जाता है। वहां के लिए मोटिवेशनल मेथड आता है। तो बच्चों को मोटिवेट कर देना है। नहीं पढ़ना चाहता है तो उसको मत करें, और उसके बाद कुछ ऐसा कहानी, कुछ ऐसा रोल वहां पर टीचर के द्वारा दिया जाना चाहिए ताकि बच्चा को अच्छा लगे। आपने एक इंटरेस्टेड स्टोरी सुना दिया, स्टोरी सुनने का बच्चा को शौक होता है, आप क्यों आकर्षित हो जाएंगे। तो जब बच्चा आपकी ओर मोटिवेट हो गया, फिर आप जो उसको देने गए दे दीजिए, लेके चले आइए, वो ले ले। टीचिंग लर्निंग आपका इफेक्टिव हो गया। तो मोटिवेशनल मेथड इज आल्सो प्लेड ए वेरी वाइटल रोल इन दिस प्रोसेस। उसके बाद जो टीचर्स का रोल है, स्किलफुल एंड वेल क्वालिफाइड। टीचर के पास टीचर का स्किल होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। यदि टीचर वेल क्वालिफाइड नहीं है, दूसरा को क्वालिफाइड आप क्या बोलेंगे? जब आप ही के पास नहीं है, दूसरा को आप कहां से लेंगे? इसलिए टीचर को वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। फ्रेंडशिप बिहेवियर शीट। अब न्यू शिक्षा नीति में सिलेबस से डंडा हटा दिया गया, मारपीट कर बच्चों को नहीं पढ़ाना। तो जब मारपीट के नहीं पढ़ाना है तो उसके साथ दोस्ताना संबंध बना लेना है। फ्रेंडशिप बिहेवियर। तो फ्रेंडशिप बिहेवियर में होता क्या है, बच्चों के अंदर जो टेरर है, जो भय है, खत्म हो जाता है। यदि कोई टीचर स्कूल क्लास में पढ़ाने गए और उससे सारे बच्चे यदि थर-थर कांप रहे हैं, जब डरता हुआ बच्चा कुछ सीख पाएगा? आपका भाषण में बात चला गया, समय की बर्बादी होगी। यदि आप बच्चों के साथ फ्रेंडशिप बिहेवियर रखते हैं तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से डरता नहीं है। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से नहीं डरता है। जो आप उसको देना चाहेंगे वो ग्रहण करेगा। तो एक टीचर के पास एक क्वालिटी होना चाहिए कि बच्चों के साथ फ्रेंडशिप बिहेवियर हमसे डरने की कोशिश नहीं। रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। एक अच्छे टीचर रेगुलर होते हैं और पंक्चुअल होते हैं। समय से स्कूल आते हैं, समय से अपना काम करते हैं, जो भी उनको ड्यूटी दिया जाता है वो निभा लेते हैं, क्योंकि वो रेगुलर है।
उनका सिलेबस कहीं पीछे नहीं रहेगा। जो टीचर रेगुलर होगी उनका काम हमेशा पट्टी पर बना हुआ रहेगा। इसलिए जो रेगुलरिटी है और पंक्चुअलिटी है एक टीचर में होना चाहिए, तभी कुछ आप ऐसा कर सकते हैं। अब ऐसा ना हो कि भाई हम 10 दिन स्कूल नहीं आए, अगला दिन आए तो सत्यनारायण स्वामी की कथा स्टार्ट कर दिए, लो बच्चा 2 टॉपिक आज खत्म हो गए, और पढ़ाई बनी। तो रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी एक आइडियल टीचर में होना बहुत जरूरी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके माध्यम से टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सकेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा टीचर को पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। यदि आप नेगेटिव रिमार्क में रहेंगे ना तो नेगेटिव चलती चली जाएगी। जहां पर नेगेटिव चीज आपको दिखाई भी पड़ रहा है उसको पॉजिटिव बनाने का प्रयास किया जाए, इसलिए कि आपका थिंकिंग पॉजिटिव है। कि दुनिया में नेगेटिव मिलेगा ऐसी बात नहीं, कभी नहीं है, लेकिन उसको पॉजिटिव रूप में हमको लेना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। इस तरह से रोल ऑफ टीचर का वर्णन आप लोगों के सामने हमने किया। यदि एक टीचर में ये सारे गुण यदि उपलब्ध हो जाते हैं तो एक बड़ी जरा कंपनी जो लिखा हुआ है रोल ऑफ टीचर, एक कमा जरा कंपनी। अब हम लोग आते हैं रोल ऑफ स्टूडेंट। The role of students in the classroom is also very essential. So, he should possess so many qualities. Number 1, discipline. Number 1, discipline. बच्चा को अनुशासित होना चाहिए। यदि अनुशासन का गुण जिस बच्चा में पाया जाता है वो बच्चा टीचर से कम मेहनत में वो अच्छा काम करके दिखा देता है। इसलिए स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन। Teaching learning program effective, each and every students should be disciplined. A good behavior towards teacher, स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपने टीचर के साथ अच्छा बिहेवियर करे। एक गुण बच्चों में होना चाहिए, जो बच्चे टीचर के साथ अच्छा बिहेव करते हैं उन पर गुरु की कृपा भी बरसते रहते हैं। और जब तक गुरु की कृपा किसी शिष्य पर नहीं बरसेगा वो शिष्य सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये गुड बिहेवियर टीचर के साथ बच्चों को रखना है। जब टीचर खुश है आपको खुश कर देगा। टीचर को आप गाली गलौज करेंगे, अनसोशल बिहेवियर उसके साथ रखेंगे, वो बच्चा जाएगा ही तो कहां तक जाएगा, उसको बीच में अटक कर जाना है। इसलिए ये बहुत मेन फैक्टर्स है। ये गुड बिहेवियर टीचर के साथ होना चाहिए, ऐसा लक्षण बच्चों में दिखना चाहिए। फिजिकली हेल्दी एंड मेंटली साउंड। स्टूडेंट का एक लक्षण और होना चाहिए, उसका स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए। फिजिकली हेल्दी होना चाहिए,
मेंटली साउंड होना चाहिए। साउंड माइंड ऑलवेज लिव्स इन साउंड बॉडी। जिसका स्वास्थ्य बढ़िया है उसका दिमाग भी बढ़िया होता है। इसलिए फिजिकली हेल्दी एंड मेंटली साउंड यदि कोई बच्चा होता है तो आपके कार्यक्रम को कभी वो गिरने नहीं देगा। इस मेथड को सक्सेसफुल बना देगा। अब जिस बच्चा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसका दिमाग स्वास्थ्य के अनुसार दिमाग भी कम रहेगा। आप बताना चाहें तो कैसे नहीं करेगा। इसलिए ये जरूरी है कि बच्चों को फिजिकली हेल्दी होना चाहिए और मेंटली साउंड होना चाहिए। क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस अगला लक्षण क्लीनलीनेस का है। बच्चों को सफाई पर ध्यान रखना है, खुद साफ रहना है। Clean himself and clean his surrounding where he lives। यदि जिस बच्चा में इस तरह की क्वालिटी है, ये अपने भी साफ सुथरा रहता है और जिस जगह पर वो रहता है उस जगह को भी साफ रखता है, सराउंडिंग आसपास के जगह को भी साफ रखता है, तो वो बच्चा का मस्तिष्क भी साफ रहता है। कोई भी चीज को बहुत जल्दी नहीं चलेगा। जब वो सफाई पर ध्यान दे रहा है तो उसका हर चीज बहुत अच्छा रहेगा। तो एक क्लीनलीनेस जो है उसको स्वस्थ रहने में मदद करता है। कोई बीमारी उस पर अटैक नहीं करेगा। ये सब से बचा हुआ रहेगा। तो ये सब बेसिक है जो बच्चा क्लीनलीनेस पर ध्यान देता है। अवॉइडिंग बैड हैबिट्स, जनरली अधिकांश बच्चे एडोलसेंस पीरियड के हो जाते हैं। ये जो अवधि है एडोलसेंस पीरियड की जो अवधि है बच्चों में, ये काफी खतरनाक होती है। ये बहुत खतरनाक होती है और बहुत सेंसिटिव है। इस समय शरीर का चतुर्मुखी विकास होता है। इस पीरियड में शरीर का चतुर्मुखी विकास होता है। शरीर का विकास होता है, मेंटल का विकास होता है। तो विकास की प्रक्रिया, ग्रोथ की प्रक्रिया इस एज में जितना तेजी से होता है उतना तेजी से किसी भी स्टेज में नहीं होता। और फिर तो एक समय ऐसा आता है जब एडोलसेंस पीरियड पार कर जाता है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टॉप। इसलिए इस एज में जो बच्चे होते हैं खासकर स्कूल में पढ़ने भी आते हैं और काफी सेंसिटिव होते हैं, तो इस समय उनको थोड़ा सा कुछ इसका लिंक मिलेगा पहुंच जाते हैं। यदि बुरी आदत का वो शिकार हो गए, बुरा इन्वायरमेंट मिल गया, वो बच्चा बर्बाद हो जाता है। कोई भी चीज कैच हो जल्दी करेगा। तो इस तरह से बैड हैबिट से जो स्टूडेंट बचा हुआ रह गया इस अवस्था में, एडोलसेंस पीरियड पार कर लिया और उसको किसी प्रकार का बैड हैबिट को नहीं पकड़ा, तो निश्चित है कि वो बच्चा आगे चलकर कुछ करके दिखाएगा। तो एक स्टूडेंट्स का लक्षण होना चाहिए जो कि बैड हैबिट नहीं। तो इस तरह से the role of the students have finished here. Now I am going to discuss the role of parents and guardians. अब ये दो पिलर मेरा मजबूत हो गया। The role of teacher. I would call to recall Dharmender sir.
say something about this topic? I am धर्मेंद्र प्रसाद सिंह। जो भी आप द रोल ऑफ टीचिंग के बारे में आप सुझाव दिए और हमें बहुत अच्छा लगा, और इसके माध्यम से बच्चा तेजी में विकास कर सकता है, यही मुझे अनुभव हुआ। थैंक यू। Dharmender sir is support that is expressed by me बहुत अच्छा लगा। Now any trainee who wants to give an opinion, please just stand up. जैसा कि आज का जो विचार है उसमें रोल ऑफ शिक्षक, रोल ऑफ टीचर जो है, तो टीचर मैंने पहले बताया कि टीचर जो है, टीचर मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है। टीचर का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु, और गुरु दो को यदि तोड़ा जाए तो गुरु प्लस रू होता है। गुरु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। यानी जो व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर अपने पालने को, अपने बच्चों को ले जाता है, वही शिक्षक होता है। अब मुख्यतः शिक्षक की भूमिका को देखा जाए तो शिक्षक की भूमिका सबसे पहले यदि कक्षा में जाए तो प्रभावशाली होनी चाहिए। मान लिया जाए कि हम किसी टॉपिक को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं और यदि हमारा प्रभाव अपने बच्चों पर नहीं रहेगा, यदि हम उस टॉपिक के बारे में हम प्रभाव नहीं छोड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर वह जो हमारे द्वारा दिया गया व्याख्यान है वह हमारे बच्चों में उस तरह समाहित नहीं हो पाएगा जो हम और आप चाहते हैं। धन्यवाद। Now I am going to conclude this topic. The rest of the topic I announced another day. Thanks for listening. I thank our resource person today, that is PGT Hindi, Sudhir Kumar Singh sir, for giving or choosing so wonderful topic about setting outcomes in teaching and learning. So he taught us about the outcomes. What are the outcomes? मतलब outcomes का मतलब क्या होता है? ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट और जानने वाली बात यह है। तो बेसिकली अगर बात किया जाए तो बचपन में आप सभी ने गणित पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, और आपने देखा है किस प्रकार से जब एक डायस को, यानी जब एक छक्के को जब आप रोल करते हैं लूडो खेलने के दरमियान, तो उसके ऊपर तो किसी नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, या तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो दैट इज द आउटकम ऑफ दैट डाइस। अगर बात करें हम लोग किसी और चीज के बारे में, ठीक है, तो आउटकम का मतलब है परिणाम। तो टीचिंग और लर्निंग के माध्यम से क्या परिणाम मिलते हैं या क्या चीजें हमें जानने और समझने के लिए मिलती है, ठीक है, इस बारे में हमारा ये मेन टॉपिक था। ठीक है, और इस टॉपिक में हमने जाना कि इस टॉपिक के माध्यम से किस प्रकार से हम जो है लोग जो है वो टीचिंग और लर्निंग से हम लोग कैसे और क्या पा सकते हैं। ये तो ना पूर्व के बारे में है और ना ही बाद के बारे में है। ये बेसिकली क्या होता है, जब ये हमारे एक तरह से जब हम लोग जब टीचिंग प्लान करते हैं, जब स्टडी प्लान करते हैं, तो जो हमारा जो रूटीन होता है उस रूटीन का हमारा ये हिस्सा होता है। ठीक है, ये आउटकम्स क्या है, ये बेसिकली हमारा रूटीन का हिस्सा है, जिसमें हम लोग ये तय करते हैं कि जब हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो इसके बाद हमारा क्या आने वाला है, उसका परिणाम क्या हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, और इस टॉपिक के बारे में सर ने डील किया, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप सभी लोगों का जो उत्साह था ट्रेनिंग को लेकर के, इसको भी लेकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, जिस तरह से और हर बार की भांति इस बार भी आपको कुछ असाइनमेंट फ्रॉम अटेंडेंस कम फीडबैक फॉर्म आपको
उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जो आप सभी लोग को भर करके सुधीर सर आपको क्वेश्चंस देंगे और उस क्वेश्चंस को आपको वहां पे सॉल्व करके तो हमारा सेशन ये चलेगा, ठीक है। और उसको फिर आप उसको भर करके आप उसको सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इस सेशन के बारे में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं ये सेशन जो है ये अपने आप में, क्योंकि जिस तरह से आप लोग को हर दिन टीचर्स लोग को एक नया टॉपिक, नया वर्ड सुनने देखने जाने की मिल रहा है, आपको अंदर से बहुत रोमांचित कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिनके बारे में हम लोग, क्योंकि जो हमारे सब्जेक्ट के अलावा भी जो, क्योंकि हम लोग क्या होता है एक्चुअली टीचर जो होते हैं हम लोग ज्यादा एक ही सब्जेक्ट को बहुत सारा पढ़ाते एक ही सब्जेक्ट से बन जाते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग के माध्यम से क्या हो रहा है कि हमारा कह सकते हैं कि एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हमारे साथ हो रहा है, ठीक है। तो ना सिर्फ ये ट्रेनिंग जो है वो इसलिए भी है ताकि हम बच्चों को भी ऑलराउंड डेवलप कर सके अपने न्यू शिक्षा नीति के माध्यम से, ठीक है। तो ये बस इसी के साथ आई वुड लाइक टू थैंक आवर प्रिंसिपल मैम, आवर मैनेजर सर, all the senior teachers and all the other teachers also, ठीक है, those who are from primary section also. I also thank each and everyone, coordinating staff, the supporting staff, whatever the management has been done and whatever everything resources we are getting available from the manager sir. And also thank all the rest of the staff also. Okay, with this I conclude my speech. Thank you. Have a nice day.